Student, in this video we are going to discuss upon the derivatives of parametric functions. Parametric function होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझें. Parametric function होता है कि अगर दो वेरिएबल्स x एंड y हैं, x और y दोनों अगर एक तीसरे वेरिएबल से डिफाइन है, जैसे x इक्वल टू ft एंड y इक्वल टू ft, यानी दैट मीन्स x इज डिफाइंड इन द फॉर्म्स ऑफ ft. Suppose take an example. If x equal to t square plus 1 and y equal to t 4 plus 2t. So that means x and y both are defined in the terms of t. So here x and y both will be known as the relationship. The relationship between x and y is known as the parametric form, and t is known as the parameter. Variable t is called a parameter, and t just it has been taken. T belongs to AB. That means the domain of t is also defined because it's the function. अब हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव्स. कैसे हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं? तो सिंपली अगर हम चेन रूल लेते हैं, देखिए y इक्वल टू एफ टी, y इक्वल टू एफ टी को y इक्वल टू एफ टी, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy अपॉन dt, अब dy upon dt will be differentiating with respect to x first of all, because and dx upon dt, dy upon dx, या dy upon dt, dy upon dt. So dy upon dt we are going to find out dy upon dt. Here are you observing? We can write dy upon dx into dx upon dt, and dy upon dx, if we find dy upon dx, then it can be written as dy upon dt by dx upon dt. That is the chain. Dy upon dt, dy upon dx into dx upon dt. It's the chain. And if we want to find dy upon dx, then it will be dy upon dt by dx upon dt. यानी कि अगर हम dy upon dx यहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली इन प्लेस ऑफ dy upon dt यू कैन राइट f dash t, dy upon dx here it will be dy upon dt, it has been written and dx upon dt. तो ये अगर इसमें हमें फाइंड आउट करना है dy upon dt, ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो dx upon dt will be 2t and dy upon dt will be 4t cube plus 2. तो ये dy upon dx अगर इस संदर्भ में हमें फाइंड आउट करना है, तो dy upon dx will be dy upon dt 4t cube plus 2 by dx upon dt 2t. ये ऐसे ही जो भी क्वेश्चंस रहेगा जिसमें x और y t के टर्म में डिफाइन होगा, यहाँ अलग लिखेंगे gt, दोनों ये लिखेंगे x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू gt. इस तरह से f ऑफ टी एंड g ऑफ टी बोथ आर द डिफरेंट. इजीली हम dy upon dx फाइंड आउट कर सकते हैं. dy upon dt को हम लोग g dash t and f dash t लिख सकते हैं. एक बार ध्यान से हम समझ लें कि अगर x और y दोनों दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और t के टर्म में डिफाइन है, तो ये जो रिलेशन है यही पैरामीट्रिक रिलेशन बिटवीन x एंड y कहा जाता है. पैरामीटर t के नाम से जाना. dy upon dx निकालना है, तो सिंपली हम dy upon dt, ये जो चेन रूल है dy upon dt
डी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी ले सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन डी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो इसी का यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही आसान। जैसा कि हमें फाइंड आउट करना है डी अपॉन डी एक्स, सभी में डी अपॉन डी एक्स, फाइंड डी अपॉन डी एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dx upon dt we have to find differentiating both sides with respect to x. dx upon dt will be here 4 to a constant 2t 4at and dy upon dt will be a is here constant t4 a 4t q and x n minus 1. तो dx upon dt dy upon dt we have found. अब now dy upon dx. तो dy upon dx can be written as dy upon dt divided by dx upon dt. dy upon dt is here 4at cube by 4at. t cancel, the result is here t square. dy upon, therefore dy upon x equal to t square. Now लिखें differentiating both side with respect to x. यहाँ 1 को ये 2 मान लिए, differentiating both side with respect to x. और ये therefore dy upon dx equal to इतना। ऐसे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी। x थीटा के टर्म में डिफाइन है और y यहाँ थीटा के टर्म में डिफाइन है, यानी ये भी पैरामीट्रिक है, यहाँ पैरामीटर थीटा। अब dx upon d थीटा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे। cos थीटा माइनस साइन थीटा, वी नो cos 2 थीटा इज माइनस माइनस इट विल बी प्लस साइन 2 थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा इज 2। तो ये हुआ। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इट विल बी 2i dy d थीटा इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा फिर 2 थीटा का 2, ये dy अपॉन d थीटा हो गया। therefore dy अपॉन dx will be easily cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा divided by dx upon d theta. You can write here minus sin theta plus 2 sin 2 theta. इतना ही लिख सकते हैं, सीधा ये आंसर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा बड़ा है इसलिए पहले सॉल्व किया गया। x इक्वल टू cos sin क्यूब t अंडर रूट cos 2t, y इक्वल टू cos क्यूब t अंडर रूट cos 2t। सॉल्यूशन x इक्वल टू sin क्यूब t रूट cos 2t। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना। dx अपॉन dt u इंटू v पर, ये इसको 1 बाई रूट cos 2t को पहले रख दिए और d अपॉन dt ऑफ साइन क्यूब t प्लस साइन क्यूब t d अपॉन dt ऑफ cos 2t टू द पावर माइनस 1 बाई 2। ये u इंटू v पर सेपरेटली लिख दिया गया और कुछ नहीं किया गया। यहाँ सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। इसको जब करेंगे तो ये रूट cos 2t है, रख दिए, d बाई dt ऑफ साइन क्यूब t, तो 3 साइन स्क्वायर t और फिर साइन t का cos t। हम जानते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन में पहले बड़ा फंक्शन 3 साइन स्क्वायर t, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t cos t, प्लस
ये देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये साइन क्यूब टी को बाद में जो कहते हैं लिख दिया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया सिर्फ और सिर्फ cos 2t टू द पावर माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 cos 2t के टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1 n माइनस 1 भी, तो जब n माइनस 1 में लेते हैं तो ये माइनस 3/2 हो गया। आगे cos 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 sin 2t, ये 2 कैंसिल, यहाँ 3 sin स्क्वायर t cos t जो बचा। यहाँ हम क्या किए कि एलसीएम थोड़ा सा, ये जो cos 2 टू द पावर माइनस 3/2 है तो इसका एलसीएम ले लिया, cos 2t टू द पावर 3/2, तो यहाँ रूट cos 2t से इसमें डिवाइड करेंगे तो cos 2t बचेगा, ये पावर 3/2 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो 3/2 माइनस 1/2 1 होता है, वहीं cos 2t बचा। तो जो 3 sin स्क्वायर t cos t पहले से है और इससे इसमें डिवाइड किए cos 2t बचा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, जो फ्रैक्शन का सम का रूल है सीधे, ये 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब ये नीचे आ गया है, केवल क्या बचा है यहाँ पर sin 2t sin 2t लिख दिए। अब ये जो sin 2t है इसमें जैसे है वैसे ही रखा गया, इसमें जो sin 2t है इसको तोड़ दिए हम 2 sin t cos t में, ये 2 sin 4t हो जाएगा और cos t हो जाएगा। एक स्टेप इसमें और हम लोग कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन है तो क्या कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं कि sin 4t cos t है, sin स्क्वायर t cos t है, तो sin स्क्वायर t cos t कॉमन है, sin स्क्वायर t cos t, तो sin स्क्वायर t cos t अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 cos 2t 3 cos 2t, यहाँ बचेगा प्लस 3 sin cos 2t बचा, sin स्क्वायर t cos t कॉमन लिया है तो 2 sin स्क्वायर t बचेगा, बस डिवाइडेड बाय जो है वो लिख दिए cos 2t टू द पावर 3/2। इसमें भी वैसे ही y इक्वल टू cos क्यूब t रूट cos 2t है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, u इंटू v पर dy अपॉन dt, u माने हम 1/रूट cos 2t को d बाई dt ऑफ cos क्यूब t प्लस cos क्यूब t को छोड़े d बाई dt ऑफ रूट, यहाँ पर रूट लिखा गया, केवल cos 2t के पावर माइनस 1/2, वही रूट माइनस 1/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये छूटा cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t माइनस sin t, cos क्यूब t छोड़ दिए, अब इसका करेंगे तो माइनस 1/2 cos 2t माइनस 3/2 n x n माइनस 1 सीधे इस पर, और cos 2t का माइनस sin 2t इंटू 2, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया। अब फिर ये जो cos 2t टू द पावर माइनस 3/2 है तो ये जब नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3/2। अब इसको हम एलसीएम में ले लिए, ये नीचे क्या है cos 2t 1/cos 2t के पावर 3/2, यही आएगा माइनस में, तो इसको एलसीएम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन का सम है, ये दोनों को जोड़ना है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो cos 2t बचेगा, यही cos 2t इसमें इंटू हो जाएगा, ये माइनस साइन है, माइनस 3 sin t cos स्क्वायर t cos 2t प्लस cos स्क्वायर t sin 2t, यही बचा cos क्यूब t और sin 2t बचा। फिर हम क्या किए sin 2t को 2 sin t cos t में लिख दिए यहाँ। अब इसमें भी कॉमन होगा cos स्क्वायर t और sin t, अब देख रहे हैं cos स्क्वायर t और sin t, वी कैन टेक द कॉमन cos स्क्वायर t एंड sin t, तो cos स्क्वायर t sin t कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 3 cos 2t बचेगा, अब प्लस ये cos स्क्वायर ले लिए हैं तो cos स्क्वायर बचेगा, cos 4 है, cos स्क्वायर t 2 sin t कॉमन है बस, और डिवाइडेड बाई cos 2t टू द पावर 3/2। अब dy अपॉन dt और dx अपॉन dt निकल गया,
तो हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखेंगे, dy/dx। तो dy/dx के लिए क्या करना है, अब यहाँ थोड़ा सा जो गिवन प्रॉब्लम है उसको मिटा दे रहे हैं, डिवाइड करना होगा। dy/dx निकालने के लिए dy/dt होता है dy/dx इक्वल टू dy/dt dx/dt। तो dy/dt का वैल्यू हम देखते हैं कि दोनों में ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब dy/dt का जो न्यूमरेटर बचा हुआ उसी को ऊपर में मैं लिखा हूँ, तो cos स्क्वायर t sin t, cos स्क्वायर t sin t -3 cos 2t, तो -3 cos 2t can be written as 2 cos square t -1, ये लिख सकते हैं। अब +2 cos square t +2 cos square t, यहाँ जो बचा है sin स्क्वायर t cos t 3 cos 2t, 3 cos 2t को अगेन वी कैन राइट 2 cos square t -1, cos 2t कैन बी रिटन एज +2 sin स्क्वायर t। ये sin स्क्वायर t है, इसको cos में sin नीचे निकालना होगा, 1 -2 sin स्क्वायर t। cos 2t का दो वैल्यू, 2 cos स्क्वायर t -1, 1 -2 sin स्क्वायर t। चूंकि यहाँ sin है, so we have to convert it into sin t। अब क्या देखते हैं हम, एक cos t कट जाएगा, एक sin t कट जाएगा, तो ऊपर में cos t बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये -3 cos स्क्वायर t +2 cos स्क्वायर t, और ये +3 हो जाएगा, यानी कि you can write 3 -4 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई, यहाँ भी sin t, ये 3 और ये -6 और +4, यानी कि -4 sin स्क्वायर t। अब ऊपर में cos t से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3 cos t, 3 cos t माइनस कॉमन कर लें, माइनस कर लेंगे तो ये 4 cos क्यूब t -3 cos t हो जाएगा, ये नीचे में 3 sin t -4 sin क्यूब t। ये फार्मूला cos 3t का, sin 3t का, तो यू कैन राइट -cos 3t बाई sin 3t, आंसर हो जाएगा -cot 3t, यानी dy/dx इक्वल टू -cot 3t। तो यही ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक दो बार प्रैक्टिस करने पर कंठस्थ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 5.6 का, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 और y इक्वल टू a sin t, वी हैव टू फाइंड dy/dx। x इक्वल टू a cos t log t/2 है, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो dx/dt इक्वल टू a cos t का माइनस sin t प्लस log t/2 फंक्शन ऑफ फंक्शन, log x का 1/x 1 डिवाइडेड बाई tan t/2, अगेन tan t/2 का sec स्क्वायर t/2 इंटू 1/2, a माइनस sin t प्लस ये tan t/2 कैन बी रिटन एज sin t/2 cos t/2 और sec स्क्वायर t/2 1/cos स्क्वायर t/2, ये cos t/2 कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ a माइनस sin t प्लस 2 sin t/2 cos t/2 sin t हो जाएगा। अब एलसीएम, इट विल बी टेक एलसीएम ऑफ sin t, a sin t sin स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर t कैन बी रिटन एज a cos स्क्वायर t
बाई साइन टी। तो ये dx अपॉन dt हुआ है। अब dy अपॉन dt अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। वेरी सिंपल, dy अपॉन dt इक्वल टू a cos t। Therefore dy upon dx equal to dy upon dt divided by dx upon dt. So dy upon dt is here a cos t and dx upon dt is here a cos square divided by sin t. You can write here sin t. A and 1 cos t will be cancelled here. So sin t by cos t written as tan t. So therefore dy upon dx equal to tan t. Next question. ये क्वेश्चन नंबर 11 है। x इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू a अंडर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t। dx अपॉन dt हम फाइंड आउट करेंगे। तो dx upon dt can be written as here under root x. So first of all 1 by 2 root a sin inverse t रूट x का 1 by 2 रूट x होता है। अब a sin inverse t क्या करेंगे? तो ax का ax log a होता है। ax यानी कि a sin इनवर्स t log a। अब फिर sin इनवर्स t का करना हो फंक्शन है तो ये sin इनवर्स t का 1 माइनस टी स्क्वायर 1 by 1 minus t square. तो वी कैन राइट हियर 1 minus t square. Similarly y is here y equal to under root a cos इनवर्स t। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। dy upon dt will be 1 by 2 root a cos inverse t a cos inverse t into log a। अब cos inverse t क्या करेंगे? फिर ये चेन रूल से a cos इनवर्स t। तो cos इनवर्स t के रेस्पेक्ट में ये पूरा रूट x 1 by 2 रूट a cos इनवर्स t हो गया कि नहीं? अब a cos इनवर्स t को करना है। तो a cos इनवर्स t का a cos इनवर्स t log a x log a होता है d by dx of ax log a होता है। तो x की जगह पर cos इनवर्स t है और लास्ट में फिर cos इनवर्स t क्या करेंगे? ये माइनस 1 by 1 minus t square d by dx of sin इनवर्स x होता है 1 by under root 1 minus x square। अब cos इनवर्स का होता है माइनस 1 by under root 1 minus x square। तो यहाँ t है 1 minus t square। अब हमें थोड़ा सा एक यहाँ आप देख रहे हैं कि रूट है, ये रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dx अपॉन dt कैन बी रिटन एज रूट log a sin इनवर्स t ये इसको कैंसिल करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 minus t square। ये dx अपॉन dt बचेगा और यहाँ dy अपॉन dt उसी तरह से सेम ये इसको कैंसिल करेगा तो रूट a cos इनवर्स t log a माइनस 2 रूट 1 minus t square। अब dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। तो देयरफॉर dy अपॉन dx। अब ये आप डिवाइड करेंगे dy अपॉन dt dx अपॉन dt। तो वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt इज हियर माइनस a। अब सी हियर माइनस इन प्लेस ऑफ रूट a cos इनवर्स t
आर यू ऑब्जर्विंग इट्स वाई गिवन वाई। तो हम इसके मतलब वाई लिख सकते हैं क्या, देख सकते हैं यहाँ पर माइनस वाई log a डिवाइडेड बाई 2 अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ a टू द पावर साइन इनवर्स t इज x, तो x log a और 2 है डिवाइडेड बाई 2 अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल, log a कैंसिल, बचा क्या है माइनस वाई बाई एक्स। यही आंसर हुआ dx। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक्सरसाइज 5.6 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रेस्ट आप सॉल्व करेंगे और मुझे लगता है कि पैरामीट्रिक फंक्शन यू कैन सॉल्व बेटर। थैंक्स।